So, today we're going to be talking about color theory. What is color theory? How typography works, and what are the basic assets that you can get to use colors in typography, that is text, right? So, while studying color theory, we highly need to understand this color wheel, right? Now, in color wheel, there are three basic things that I need you guys to understand. First is contrast, how it works. Secondly, gradients, and third is similar gradient, similar colors, right? So, when you go ahead and imagine an app that has a red color as its background, so how will you focus? How will you get someone to focus on a particular element that is um, based on red color, and you need to gather attraction on it. You need to gather the user's focus on it. How will you do it, right? You need something that contrasts the red color. You need something that stands out on the red color. So as you can see on this color wheel, here is the red color, this is the red color, right here. Now you need something that stands out on red color, so you can use the color wheel for it. That is, when you look exactly opposite to the red color, that is, you can draw a straight line from the red color. And when you go ahead and draw a straight line, the color that you can see exactly opposite to the red color, or this orange and red gradient here. So when you look exactly opposite, and you can see these two colors here, right? So these are the negatives of that color, these are the contrast, the opposites of that color. So when you have a red background or an orange background, you can always go ahead and use green or blue or purple. These type of colors will definitely stand out on these particular colors. So that is how you can use color theory for contrast, that is making something stand out using colors. Another thing you can use is gradients. What are gradients? Gradients are um, increasing intensities, in increasing dimensions in color, but you still stay in the same color range. That is a gradient for red. That a gradient for red might include orange, yellow, a little ochre, and very light forms of yellow. These are the four basic colors that a gradient of red can involve. Now, if you go ahead and look downwards, there is red, there is a little lighter version of red, maybe a little bit of pink, and then there is the very off color of red. So these are the straight gradients of red, and this is the color range of red. So I hope that you all are basically familiar with what gradients are. And then how you can study gradients is, when you create something based on color, it is basically a combination of different colors of that same gradient. If I have this color as a background, if I have this very light red as a background, I can always create elements with this darker shade of red, or this ochre, or this lighter yellow, right? I can use similar type of colors to create different objects in it. Like Prathamesh said yesterday, the home panel, the category panel, all these things can be created in these colors. And then when you write text on it, you can always use the opposite colors that will make it stand out, right? This is how you can use the color theory. You can create all the elements in the similar gradient, and then things that need attention, things that need, quick grasp on them, you can always use the opposite colors to highlight them, right? So that is how you can use gradients. And other than that, when you come to similar colors and similar gradients, it's almost the similar theory. You can use all the different shades that are in the color wheel depending on the color you're using. How that works is, let's take an example. Imagine your UI is having a purple background, so you should not use similar color to highlight something. You should never use similar colors to highlight something, but you should use similar colors to make elements in that particular frame. So imagine that this was a paper, and then you go ahead and write something. Let's study this color on the color wheel. So we have a gradient of purple to a lighter shade of purple. So we have this color right here, purple, and then we are going towards the lighter shade of purple, maybe till here. So when I go ahead and write this particular text in a similar color, that is which lies here. So when I write this text in this similar shade of color,
it is not looking very good, and importantly it is gaining no traction, no attraction with it. It is just a text that no one will exactly have their attention you know accumulated at it at one glance. You have to read it, you have to focus on it, मेहनत लग रही है उसे पढ़ने को basically. But then when you go ahead and see, I have this purple color, a gradient of purple color, and when I look exactly opposite to it, when I look exactly opposite to it, there's this yellow color right here. And when I go ahead and write this text in yellow color, you can see automatically it gains so much more attention, so much more traction. When I look at this whole frame, there are so many colors here. There is so much written here. There are these designs. But then when I naturally look at this picture, I ignore everything in this picture and my focus certainly goes to this particular frame right here. Why? Just because of the colors. There is nothing more to it, guys. It's just negative and opposite colors. Purple has a contrast of yellow. So when I write the text with yellow, it instantly grabs my attention. So that is how color theory works. It is very simple. There is nothing complicated about it. Let me focus another slide which will help us understand texts better. So as you guys can see here, there are like one, two, three, four, five, six different texts in this particular frame. But I'm sure that you guys understand that if I sold this as a sticker for a wall, this would still get me some money. It looks good together. There are six different fonts in this particular frame, but it still looks good together. The reason is I have chosen texts particularly that are from the same font category, that have the same weight, that have the same type of flow. There is not much difference between these texts. They look different. I understand. They look really different. But if you look closely, look at the I here, right? Look at the I here and look at the Y here. There is not much difference in them except that this is a more spread out version and this is a more a crushed version. It is more compressed sideways and this is more open sideways. That is the only difference between these two texts. Although they look very different, but your brain still goes out and thinks that these are same fonts, or they belong to the same family. Why? Because they have a very similar type of structure to them. They have a very similar type of structure to them. This is just more spread sideways. This is just more compressed sideways. Then you come here. Now, what is similar between these two texts is the line size. You can see the line size is very similar, and the straight lines. O is very straight here, Y is very straight here, U is very straight here, U is very straight here. So this is the similarity between these two texts, right? And then when you come out here at R, you can see that this is even more spread out version of this. This is even more spacious, even more spread out sideways than this is. So the there is. So you can see here that these are different fonts, very different fonts, right? They, if you look at it from far away, they every single word here looks like a different font. But they still go hand in hand. Why? Because they have the similar type of properties with them. So you need to focus when you are using typography. The basic suggestion is you need to focus on the properties of the text rather than the visual stimulation that you get, because you can never ask samples to look good, and you can never rely just on your imagination for your output to look good. You always need to be tactical, you always need to be critical about what you're using in your frames, because that is what will make your UI UX good, not guesses, not random decisions. So focus on the properties, focus on the way the text is made, the way the text is presented, and then you can use your typography. So let's just get our assets straight. The people who have done my workshop,
graphic guru, they know all these assets. But for those of you guys who do not know, this is a website called My Color Space. Basically, what we studied in Color Wheel, right here, was different shades of colors and how to use them. So who's gonna open up a color wheel and then search for a color and then search for what its opposites are? You cannot do that every time. It is very hectic. So let's just ask this website to do that work for us, right? So you can see right here, My Color Space. That's the name of the website. You go ahead, take a color that you can see. We worked on purple, so let's just keep it purple. And then I'm gonna click on generate. So when I click that, you can see right here, I have a million different gradients to work with. Isn't it amazing, guys, that you can just go ahead and put in a color, and this particular website will give you all the different type of gradients right here that you can use, all the different type of opposites right here that you can use. So everything that you can imagine about your colors is available here. If you are creating a user interface, these are the matching gradients that you should use to make objects, right? These are the matching gradients that you should use to make the home page, the different elements that display categories, everything. And then when you need to write texts, you should use the generic gradient. You should use, if you have elements in this particular shade, purple, orange and pinkish, then you should use yellow, you should use ochre to make your text highlighted. So that's how you can use this particular website. There are 100 different gradients on this. You need to choose your own taste, you need to choose what you like, but this will do the work for you and way better than you could. This website understand colors way better than we ever can, right? So this is a very nice website you guys can use. Then for fonts, we are going to come on the font. Here, this is a website where you can find, like, I can't even count how many fonts are there on this website. There are like so many great fonts available on this website, and it is free to use. You can just go ahead and download it and use it on your PCs. So you need to, if you want to stick to a particular font family, let's say if you want to stick to something handwritten, so there is your handwritten fonts. It looks like something that is written by hand, and then you can always go ahead and use all these different fonts from the same family and make your UI UX look better. So that's how you can find fonts for your designs, how you can use fonts free of cost, and you can use them in different places. So yeah, guys, that was my section of this workshop. Handing the mic over to Prathamesh. Okay, thank you very much, Dipankar, for this small session on color theory and typography. Basically, ये सेशन इसलिए मैंने स्टार्ट दीपांकर से करवाया बिकॉज बहुत से बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने फोटोशॉप का वर्कशॉप ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दे नो व्हाट एग्जैक्टली कलर थ्योरी इज़, व्हाट एग्जैक्टली टाइपोग्राफी इज़, राइट. सो अभी हम लोग बेसिक समझ गए हैं कलर्स कैसे यूज़ करने होते हैं, बेसिक समझ गए हैं कि फ़ॉन्ट्स कहाँ से मिल सकते हैं और फ़ॉन्ट्स को किस तरीके से हमको यूज़ करना है, राइट. सो नाउ वी विल डायरेक्टली जंप टूवर्ड्स आर डिज़ाइनिंग, राइट. कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था, राइट. कल सभी लोगों ने स्ट्रक्चर बराबर क्रिएट किया था. सो अभी हम लोग हमारी कल की जो डिज़ाइन थी वो ओपन कर लेते, जो मैंने इन सेशन आपको दिखाई थी, राइट. ओके, सो ये हमारा एक डिज़ाइन था. मुझे कुछ कामों की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिला बाकी के स्क्रीन्स बनाने को, बट फाइन. हम लोग को बेसिकली ये फ्रेम जो है उसको अच्छे से हमारी कलर थ्योरी एंड टाइपोग्राफी के बेसिस के ऊपर उसको डिज़ाइन करना है. ओके, बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है. सो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान है आज, बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ अगर तुम लोगों को एक कैनवास दे दे जिसके ऊपर पेंसिल से अच्छे से बिल्कुल ड्राइंग करके रखी हुई है, एंड यू जस्ट हैव टू कलर इट विथ योर पेंट ब्रश, एंड यू नो कि कलर कैसे यूज़ करने हैं. सो इज़ इट ईजी और नॉट? जस्ट टेल मी, इज़ इट ईजी और नॉट? येस और नो? फास्ट. Yes, right.
अगर तुम लोगों को ऑलरेडी कैनवास के ऊपर एक डिज़ाइन बनाकर दे दी है, देन कलरिंग इट, लाइक बचपन में तो हमने किया होगा ना यार, वो कलरिंग बुक्स आती थी बचपन में, याद है, जिसमें कार्टून्स को कलर करते थे, मिकी माउस को कलर करते थे, डोरेमोन को कलर करते थे, लाइक दैट। हमें पता है यार, डोरेमोन को इस तरीके से कलर करना है, मिकी माउस को इस तरीके से कलर करना है, हमको पता था बचपन में, हम बिल्कुल अच्छे से करते थे उसको कलर, राइट। सो यहाँ पर भी बेसिकली हमें अभी पता है कि कलरिंग हमें कैसे करनी है, राइट, हमारा क्या मोटो होने वाला है कलरिंग का, राइट। डिज़ाइन हमारे पास ऑलरेडी है, स्ट्रक्चर, बस उसको अभी कलर करना है, ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ कलरिंग। ओके, सो एक साइड में मैं एक काम कर लेता हूँ, जो मेरे पास मैंने डिज़ाइन के इंस्पिरेशंस, जो आइडिएशंस रखे थे, वो मैं अपने पास रख लेता हूँ, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू इवन गेस द कलर्स, लाइक चूज़ द कलर जो मुझे यूज़ करने हैं, राइट। सभी लोग अपने इंस्पिरेशन के लिए जो भी तुमने डिज़ाइंस देखे थे उनको कंसिडर करें, बिकॉज इंस्पिरेशन वाली जो डिज़ाइंस है, अगर वो कंसिडर हम नहीं करेंगे, सो हमको एक वो, मतलब क्या है ना, आइडिया नहीं आएगा। कितना भी कुछ भी हो जाए, हमने कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते रहनी चाहिए, राइट। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू टेक इंस्पिरेशन एंड इट इज़ रियली रॉन्ग टू कॉपी, ठीक है। हमें बस इंस्पिरेशन लेनी है, वी डोंट हैव टू कॉपी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जब कलर्स को देखते हैं बाकी डिज़ाइंस के ऊपर, सो मोस्ट प्रोबेबली गेमिंग जो ऐप्स रहते हैं उसमें डार्क थीम ज़्यादा रहती है, और वी कैन से डार्क थीम ही रहती है, राइट। लाइट थीम के कोई भी मैंने एप्लीकेशंस अभी तक के डिज़ाइंस देखे नहीं हैं। डू यू अग्री, येस और नो, +1 इफ़ येस, -1 इफ़ नो। डार्क थीम्स रहते हैं या नहीं रहते हैं मैक्सिममली, राइट, मैक्सिममली डार्क थीम्स रहते हैं। सो मैं भी क्या करूँगा, बस एक कलर चूज़ कर लेता हूँ जो डार्क हो, ठीक है, एंड वो कलर चूज़ करके मैं अपने जो है ना यहाँ पर आता हूँ, एंड्रॉयड स्मॉल, ठीक है, मैं इसको करूँगा फिल उस डार्क थीम से। सो अभी मेरे पास, अरे यार HSL कोड नहीं चाहिए, वी वांट हैश कोड, राइट। हैश कोड मेरे पास जो आया हुआ है, जो मैंने अभी अपने डिज़ाइन के लिए चेक किया, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। ये डार्क थीम के लिए कलर मैंने अभी देखा। ओके, सो अभी फ़िलहाल जो है ये बहुत अलग लग रहा है, बट इसको अभी हम लोग और अच्छा बनाएंगे। अभी सिर्फ बैकग्राउंड सेट किया हमने, राइट, ठीक है। सो मुझे ये कलर अच्छा लगा, बिकॉज डार्क थीम के हिसाब से एकदम ब्लैक भी नहीं होना चाहिए, वो आँखों में थोड़ा सा चुभता है, एंड एकदम लाइट भी नहीं होना चाहिए। सो हमने एक ब्लेंड कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कलर स्पेस पे, ठीक है। सो अभी तुम लोगों को बेसिकली जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ कलर स्पेस के ऊपर वगैरह वो नहीं दिखेंगी, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन फिग्मा, ठीक है। कलर स्पेस पे जाना कैसे है, क्या करना है, वो दीपांकर ने ऑलरेडी तुमको दिखा दिया है। सो इट इज़ ईजी आई गेस, और एल्स यू वांट टू इवन सी दैट कि कैसे कलर स्पेस पे मैं पैलेट निकाल रहा हूँ। इफ़ येस देन +1, इफ़ नो -1। इफ़ यू वांट टू सी, आई विल जस्ट शेयर दैट स्क्रीन एंड शो यू कि मैंने कैसे पैलेट चूज़ कर रहा हूँ। +1, ओके फाइन, आई विल जस्ट शेयर, okay, I would just share that screen, color space, okay, so yeah, now it is visible। मैं यहाँ पे जो मेरा कलर कोड है उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो सी, मुझे कुछ ग्रेडियंट्स यहाँ पे आ गए हैं, जेनरिक ग्रेडियंट्स है, ठीक है, कुछ मैचिंग ग्रेडियंट्स है, मुझे मैचिंग ग्रेडियंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्पॉट ग्रेडियंट्स है, ट्विस्टेड है, क्लासी, क्यूब, ओके, नेचुरल, मैचिंग पैलेट अगेन। थोड़ा सा ऐसे कोई पैलेट लेते हैं जिसमें ब्राइट कलर्स भी अवेलेबल हो,
राइट, क्योंकि डार्क थीम है तो हल्का सा एक ब्राइटनेस भी रहता है उसमें। ओके, सो आई गेस कि हम लोग अगर ये भी थीम, नो, क्योंकि मुझे ये थीम थोड़ी सी एक बेटर लग रही है, स्किप ग्रेडियंट। आई एम फीलिंग दैट दिस इज़ बेटर वन। ठीक है, सो मेरा प्राइमरी कलर जो है वो ये है। ठीक है, अभी सेकेंडरी, टर्नरी कलर और टेक्स्ट कलर जो है वो हमें डिसाइड करना है। सो मैं टेक्स्ट कलर जो है ना वो लाइट कलर यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, टेक्स्ट कलर जो है मुझे लाइट यूज़ करना है, सो मैं इसको जो है एज माई टेक्स्ट कलर यूज़ करता हूँ। ओके, सो अभी फ़िलहाल हम लोग इस चीज़ को रख लेते हैं अपने पास। सिमिलरली तुम भी इन सब चीज़ों को अपने पास रख लो अभी। नाउ लेट्स गो टू फिग्मा। ठीक है, हम लोग फिग्मा पे आ गए। ये टेक्स्ट है, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ओके, सो मैं टेक्स्ट पे इसको डाल दूंगा एंड लेट्स सी हाउ इज़ इट लुकिंग लाइक देयर। जितने भी टेक्स्ट है पहले उनको डाल देते हैं सेम कलर। जस्ट चेक दैट आउट लेटर कि एग्जैक्टली कैसा लग रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट के ऊपर अलग डालेंगे क्योंकि इसके पीछे में इमेज रहने वाली है, सो वो अलग रहेगा। हेडिंग्स को बेसिकली हम लोगों ने ये कलर दे दिया है। ओके, सो आई गेस इट इज़ लुकिंग बेटर, लाइक मैच कर रहा है राइट कलर पैलेट के साथ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कलर था, आई गेस आई कैन एडजस्ट इट लाइक दिस हियर, कि मुझे इसमें बैकग्राउंड में जो ये अपना एलिप्स है उसमें इट इज़ लुकिंग गुड राइट, एंड सिमिलरली इन दिस ऑल्सो सेम कलर। ओके, बट अभी ऐसा हो रहा है ना मुझे कि ये लाइन में बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं, सो आई वुड जस्ट ट्राई द फोर्थ शेड जो डार्कर था उससे, एंड अगेन हियर। ओके, दिस इज़ better than the before one। ठीक है, दिस इज़ बेटर। एंड जो थर्ड वाला था आई कैन यूज़ इट हियर एज एन ग्रेडियंट। हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे प्राइमरी कलर ये डालता हूँ, आई वांट द ग्रेडियंट, बट ग्रेडियंट जो है, सी अभी देखो मैंने ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया। कैसे किया? यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल में आया, आई केम हियर एंड ग्रेडियंट में गया इधर। ओके, एंड अभी ग्रेडियंट जो है ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में है, मुझे चाहिए है ये कॉर्नर लाइक दिस। ओके, लाइक दिस आई वांट इट लाइक दिस। सो मैं इसको जो है ना पूरा इस तरीके से कर दूंगा एंड नाउ इट्स लुकिंग लिटिल बेटर। बट इसको मैं क्या करूँगा अभी हल्का सा ना इधर लेके आऊँगा ग्रीनिश शेड के पास। ठीक है, और इसको हम लोग लेके चलते हैं और पीछे। ठीक है, आई गेस दिस इज़ लुकिंग बेटर। व्हाट डू यू थिंक गाइज, ये अच्छा लग रहा है? इज इट लुकिंग गुड? येस और नो? राइट, सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लीनियर है, सो मैं इन लोगों को यहाँ से डिलीट कर दूंगा क्योंकि वापस से कलर करते बैठने से अच्छा आई वुड जस्ट डुप्लीकेट दिस। डुप्लीकेट कैसे करते हैं हम लोग? कंट्रोल डी। ओके, सो ओके रिपीट। ओके, आई वुड जस्ट रिपीट इट अगेन। हमने क्या किया ग्रेडियंट के लिए? ठीक है, यहाँ पे हम लोग आए, आई वुड जस्ट शो इट ऑन सेकेंड वन। यहाँ पे हम लोग आए, मेरे पास जो कलर पैलेट थी उसमें से मैंने एक कलर सिलेक्ट किया जो मुझे अच्छा लगा। ओके, यू कैन सिलेक्ट एज पर योर कन्वीनियंट। ठीक है, आई सिलेक्टेड दिस कंपोनेंट। फिल के ऊपर ये जो कलर बॉक्स है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर है ग्रेडियंट, इस सेक्शन में हम जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये हेक्स कोड है उसके जगह पर हम लोग हमारा जो हेक्स कोड है वो पेस्ट कर देंगे। ओके, देन मुझे जो चाहिए है ये डायगोनल में चाहिए है। ओके, सो मैं इसको जो है यहाँ से इधर तक
ऐसे खींच के लेके आऊँगा एंड सिमिलरली अगेन लीनियर इसको यहाँ से इधर खींच के लेकर जाऊँगा। ओके, मैंने क्या किया, इसको बस एक यहाँ पर डायगोनल में सेट कर दिया। अब एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने एग्जैक्टली इधर जो सेकंड कलर था वो कौन सा चूज़ किया था। इट इज़ दिस वन। सो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसे, और देखो यहाँ पे हमने इसको इतने दूरी तक बाहर खींचा हुआ है। इट इज़ आउट ऑफ द कंपोनेंट, लाइक लाइन जो है वो कहाँ तक हमने खींची हुई है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ओके, अगर देखो अगर मैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं करता हूँ सो वो कितना डिफरेंट दिखेगा। आई वुड जस्ट शो यू। मैं लीनियर में आता हूँ, सेकेंड कलर में मैं अपना वो कलर पेस्ट कर देता हूँ। सी, अभी बेसिकली इन दोनों कलर्स में इसमें जो है एक ब्लैक शेडो ज़्यादा है और इसमें कम है, राइट। बट अगर मैं वापस से इसे जो है इस तरीके से यहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है, एंड इसे यहाँ पे, सो जो ब्लैक शेडो है वो कम हो गई अभी जैसी थी। अभी ये दोनों सेम दिख रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अभी इन दोनों को यहाँ से हटाते हैं। मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। आई वुड जस्ट टेक इट लाइक दिस हियर एंड डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ तक समझा एवरीवन? यहाँ तक सभी को समझा? +1 ओके, गुड गुड, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो ये जो आइकन्स है ना वो ब्लैक मुझे अच्छे नहीं लग रहे इसके ऊपर। सो मैं क्या करूँगा ना, इसको ब्लैक की जगह कर दूँगा वाइट। विल जस्ट चेक आउट कि वाइट कैसा लग रहा है। इज इट रियली लुकिंग गुड और नॉट, राइट? एंड आई गेस इट्स नॉट लुकिंग गुड। वाइट के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स क्लिक दिस एंड वाइट के जगह पे हम लोग ना ये जो कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया हल्का सा ग्रेइश कलर वो सिलेक्ट करते हैं अगेन। ओके, वो भी बहुत ये लग रहा है। ओके, डबल क्लिक एंड डाउन। ओके, ये ठीक लग रहा है। हल्का सा डार्कनेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस आइकन को भी सेम, ठीक है। यहाँ पे मैं वेक्टर सिलेक्ट किया एंड देन पेस्ट। ओके, सो अभी जो ये बेटर लग रहा है, अभी पहले से बेटर लग रहा है ये, ठीक है। इसको हमने सेट कर दिया है, राइट। अभी एक हल्का सा लुक अच्छा आ रहा है। बॉटम बार को हम क्या करेंगे, हमने ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया, राइट। सो यहाँ पर भी ग्रीन कलर ही यूज़ करना है हमें। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन कलर डुप्लीकेशन? कलर डुप्लीकेशन इन द सेंस मैं समझा नहीं देवांशु। कैन यू जस्ट स्पेसिफाई द व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से? लाइक आई वाज सेइंग कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को वापस से यहाँ पे डुप्लीकेट कैसे किया? इज़ इट ओके? तो अगर वैसा होगा सो ओके, सी ये मैंने डिलीट किया। मैं इस कंपोनेंट को क्लिक करता हूँ एंड कंट्रोल डी पे प्रेस किया मैंने, कंट्रोल डी, ठीक है। और यहाँ से इसको मैंने एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वहाँ पे सेट कर दिया। अगेन मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा सो वो अपने आप उतने डिस्टेंस पे चला जाएगा एंड सेट हो जाएगा, जो वापस से डुप्लीकेटेड कंपोनेंट है वो। ओके, सो ये समझा? ओके, डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑफकोर्स ग्रीन कलर ही यूज़ करेंगे ऐप बार के लिए, लेकिन इसको ना थोड़ा सा हम लोग एक ग्लासी इफेक्ट देंगे, ठीक है। एक ग्लासी इफेक्ट देंगे। अभी ग्लासी इफेक्ट कैसा होता है हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमारा ग्रीन कलर कौन सा था, वी हैव इट आई गेस, ठीक है, यहाँ पे है। सो हम लोग इसको करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल सी, एंड मैं अपने ऐप बार के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लोज दिस ऐप बार, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एंटर, एंड सिमिलरली इसमें भी जो है वो एंटर। ओके, अभी ग्लासी इफेक्ट कैसे देंगे? सो वो भी जो है वो होगा ग्रेडियंट से। वापस हम लोग ग्रेडियंट में आएंगे, ठीक है। अगेन मैं इसको लीनियर ग्रेडियंट करना चाहूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। दोनों को मैं बहुत ही दूर दूर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। हल्का सा पास यहाँ से और यहाँ से,
एंड अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, अ, यहाँ पे मैं ये जो लाइन है इसके ऊपर एक क्लिक करूँगा, सो मेरे पास एक एक्स्ट्रा ग्रेडियंट आ जाएगा जो है थर्ड ग्रेडियंट। ठीक है, सो थर्ड ग्रेडियंट को जो है ना मैं ओपेसिटी बिल्कुल 100% कर देता हूँ एंड इसको ला देता हूँ थोड़ा सा बीच में। ओके, 100% नहीं, थोड़ी कम कर देते हैं इसकी ओपेसिटी, नॉट दिस वन। ओके, ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं एंड ठीक है। सो इसको हम लोग एक हल्का सा ग्लास इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जितना हो सके। ओके, यहाँ पे वापस से हम लोग इसको लीनियर में मॉर्फिंग इफेक्ट, ठीक है, यहाँ से इसको हम हल्का सा और कम कर देते हैं, ओपेसिटी और हमने कम कर दी एंड रेस्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पे सेट करते हैं लाइक दिस। ओके, और इसमें ना मैं एक काम करूँ, लीनियर की जगह व्हाट इफ आई जस्ट सेलेक्ट रेडियल एंड मैं इनको कम कर देता हूँ। ओके, आई गेस रेडियल वुड लुक मोर बेटर। इसको 100% करते हैं एंड इसको यहाँ पे खींच कर लेकर जाते हैं। ओके, नाउ इट्स लुकिंग अ लिटिल बेटर। ठीक है, अभी इसको हम देंगे ब्लर इफेक्ट, राइट, वो तो हो गया। अभी ब्लर इफेक्ट देंगे, यहाँ पे ड्रॉप शैडो हटाएंगे, प्लस में क्लिक करेंगे, ड्रॉप शैडो की जगह देंगे हम लोग लेयर नहीं, हम लोग देंगे बैकग्राउंड ब्लर। सी, अभी बैकग्राउंड ब्लर होने की वजह से देखो यहाँ पे एक इफेक्ट आ गया ग्लास जैसा, सिमिलर टू ग्लास, राइट। अभी यहाँ पर हम लोग वापस से थोड़ा सा कलर्स में ये करते हैं ताकि वो हम लोग प्रॉपरली उसको सेट कर सके। इस कलर को भी मैं यहाँ पर जो है ओपेसिटी इस कलर की हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गया एक ग्लास इफेक्ट, राइट। सभी को समझा हमने ये कैसे किया, ग्लास इफेक्ट कैसे लाया? अगर नहीं समझा होगा तो -1, समझा होगा तो +1, नहीं समझा होगा तो हम लोग वापस से देखते हैं इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर कि ग्लास इफेक्ट कैसे लाएंगे। और एल्स आई वुड जस्ट डू इट फास्टर और एल्स आई वुड गो स्लोअर। -1 नहीं समझा, -1 नहीं समझा, ओके फाइन, ठीक है। सो देखो ब्लर हाउ, ओके मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोगों ने वापस से इस कंपोनेंट को सिलेक्ट किया, फिल में हम लोग कलर पे जाएंगे, ग्रेडियंट में जाएंगे, लीनियर की जगह रेडियल यूज़ करेंगे, लीनियर की जगह रेडियल। ओके, सो ये बेसिकली सर्कुलर इसमें हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने दे दिया, अब मैं इसको करूँगा क्लोज, मैंने रेडियल इफेक्ट दे दिया उसके अंदर एंड सॉरी रेडियल फिल कर दिया मैंने, कलर जो है वो फिलिंग जो है उसकी रेडियल ग्रेडियंट में की है। किस में की है? रेडियल ग्रेडियंट में। सो अभी रेडियल ग्रेडियंट में कलरिंग करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट में देखो, इफेक्ट में जब हम लोग इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे सो ड्रॉप शैडो दिखता है, उसके जगह पे हम करेंगे बैकग्राउंड ब्लर। क्या किया हमने? बैकग्राउंड ब्लर। वो ब्लरनेस हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितना ब्लर रखना है कितना नहीं रखना है। ओके, सो यहाँ से मैं इसको 3 कर देता हूँ एंड इसके साथ ब्लेंड करने के लिए आई वुड जस्ट डू दिस अ लिटिल मोर, बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा कर देते हैं इसको, राइट। सो अभी जो है ये लिटिल बिट बेटर लग रहा है, बट मेरे को लगता है इसको और डार्क करना चाहिए हमने, लिटिल बिट डार्कर इट शुड बी, not this one, this one। ओके, एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ फॉर द सेम ऑफ दिस। रेडियल में आएंगे, सेकेंड वाले को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हल्का सा डार्क कर दिया हमने इसको, ओके। बट अभी जो दिक्कत मुझे यहाँ पे दिख रही है
वो है नीचे में शैडो ज़्यादा है, एंड आई डोंट वांट दैट शैडो डाउन। सो अगेन मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है, लाइक दिस। हल्का सा ब्लरीनेस रख के इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। अभी समझा सभी को हमने कैसे ग्लास इफेक्ट दिखाया यहाँ पर, सभी को, एवरीवन? ओके, गुड, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन जाके कुछ गेम्स के इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, ठीक है। सो आप भी कोई भी गेम के इमेजेस वगैरह जो आप चाहे वो डाउनलोड करके रख सकते हैं, सो दैट आप अपने डिज़ाइंस में डालने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, यू कैन यूज़ एनी इमेज, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से इमेजेस यूज़ करते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने पबजी की कुछ एक इमेज ली है, वैलोरेंट की एक इमेज ली है। ओके, सो आई वुड जस्ट टेक दोज इमेजेस इन फिग्मा राइट नाउ। ओके, और किसी को कोई गेम पसंद है, सो दैट आई कैन जस्ट गेट इट हियर फॉर योर रिकमेंडेशंस। आई गेस पबजी सभी को पसंद है, इसलिए नो रिकमेंडेशंस आर देयर। ओके, आई गॉट वन COD, चलो ठीक है सभी को। सो एक COD की मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एज यू रिकमेंडेड इट। अमंग अस, अरे बाप रे, सॉरी प्रणीता, बट अभी इमेजेस जो है फुल हो गए मुझे, नहीं तो फिर पबजी की इमेज हटानी पड़ेगी इफ़ यू आर ओके विथ इट। ठीक है, सो मैं अभी इमेजेस को जो है, ये जो इमेज है एक पहले डाउनलोड कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी की। ओके, और मैं सारे के सारे इमेजेस को जो है यहाँ पर अभी लेके आऊँगा। वो कैसे लाऊँगा इमेजेस, हमने लास्ट मैंने इसमें दिखाया, रिकॉर्डिंग में दिखाया, अगेन यहाँ पर दिखा देता हूँ। इमेजेस लाने के लिए जो ये रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे है, ओके, उसके ऊपर हम लोग बाजू में एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में दिखेगा प्लेस इमेज और वीडियो, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक जो बेसिक डायलॉग बॉक्स होता है फाइल्स का, वो ओपन होगा। अभी आपको फ़िलहाल वो दिख नहीं रहा होगा बिकॉज जस्ट फिग्मा की स्क्रीन ओपन है। सो बेसिकली वो डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं फ़िलहाल, जैसे कि ये एक इमेज है, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। देन नेक्स्ट वी हैव दीज इमेजेस, ओके, पबजी इधर, अपेक्स इधर, ओके, एक इमेज आनी रह गई, दैट इज़ वैलोरेंट, एंड वी हैव वैलोरेंट हियर, ठीक है। ये 4 इमेजेस आ गई मेरे पास। मैं क्या करूँगा, बस एक एक इमेज को ना यहाँ पे सेट करते जाऊँगा इसके अंदर। बेसिकली सबसे पहले ना इमेजेस को मैं इसके साइज़ का बना लेता हूँ, दैट इज़ 170 विड्थ, 200 हाइट। मैं इसको दे देता हूँ 170 विड्थ एंड 200 हाइट, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कितनी है, दैट इज़ 13, यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉर्नर रेडियस 13 है, मैं इसको भी दे देता हूँ 13। ओके, अब ये एग्जैक्ट उसी साइज़ का हो चुका है, एंड आई वुड जस्ट प्लेस इट एग्जैक्टली देयर। देखो अभी ये जो माइन्यूट वर्क है ना, जो बिल्कुल बहुत, देखो अभी ये इमेज तो बहुत फटी हुई है, डोंट यूज़ दीज टाइप्स ऑफ इमेजेस। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ऐसे यूज़ कर लेते हैं, बट डोंट यूज़ मोस्ट प्रेफरेबली, ठीक है। ये एक इमेज रख दी हमने, देन अगेन हियर 170 बाय 200, ओके। सो ये इमेज कट रही है ऊपर से, इसको हम लोग नीचे से काटेंगे, ठीक है। 240 हो रही है, सो उसकी जगह हम लोग इसको करेंगे 200, सी यहाँ पे 212 7 6 5 4 3 2 1, ओके, ठीक है। सो ये इमेज तो कट ही रही है। लेट्स डू वन थिंग, हम लोग पबजी की इमेज ले लेते हैं। ये 170
बाय 200, गुड, एंड 13। ठीक है, इसको अगेन मैं ला लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग सेट करेंगे जैसे वो सेट है। ओके, दिखने में भी अच्छा लग रहा है ये मुझे अभी फ़िलहाल। और रही बात इन दो इमेजेस की, सो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, अपेक्स लेजेंड का यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, सो अपेक्स लेजेंड का जो है एक लोगो ला लेते हैं। ठीक है, एंड एक इमेज तो है हमारे पास अपेक्स लेजेंड की। ओके, अगेन मैं जाऊँगा यहाँ पर इमेज, मेरे पास जो मैंने अपेक्स लेजेंड का लोगो डाउनलोड किया है, आई वुड जस्ट गेट इट हियर। अभी देखो ये जो है रेक्टेंगुलर लोगो है, सो अभी इसको हमें जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे स्क्वायर है सो स्क्वायर ही देंगे। कुछ कई लोगोज ऐसे होते हैं जो रेक्टेंगुलर ही होते हैं। ओके, सो वी नीड टू एडजस्ट इट। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा सा इधर लेकर आऊँगा एंड थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा। अभी ऊपर क्यों गया, आई वुड जस्ट टेल यू। जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा टू दिस, ठीक है, सो मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से मुझे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, राइट। अभी मैं इसको जो है यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप में लेके आऊँगा एंड वी हैव दिस 33, 50, और एल्स वी कैन से 50 एंड 33। ओके, एंड वी हैव बॉर्डर रेडियस ऑफ 4, सो यहाँ पे हम लोग रेडियस दे देंगे 4 एंड हम लोग, अरे तू तू थम जा, हाँ ओके, यहाँ पे हम लोग लेके आ गए अपेक्स लेजेंड को। ओके, सो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटाया मैंने, मैं इसको पहले जो है ये कर लेता हूँ यहाँ पे। आई विल जस्ट ग्रुप दिस, कंट्रोल जी, जिससे ग्रुप हो जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको बाहर लेके आता हूँ, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अपेक्स लेजेंड की जो ये इमेज है, ठीक है, इसको हम लोग पहले बॉर्डर देते 13। अभी देखो फ़िलहाल जो यहाँ पे इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, दोज आर वेरी रफ इमेजेस। ठीक है, you most preferably use better images than these images। ठीक है, अभी हम लोग इसको लेकर आते हैं नीचे। ओके, और अभी देखो इसके ऊपर का टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इमेज तो आ गई पीछे, बट पीछे का जो इमेज है वो टेक्स्ट को बराबर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब दिखने नहीं दे रहा है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फिल है वहाँ पे 100% लिखा हुआ है, उसको मैं कर दूँगा नियर बाय 20% और एल्स 30%। ठीक है, सो अभी पीछे इमेज भी दिख रही है और जो है टेक्स्ट भी दिख रहा है। और जो रेक्टेंगल है ना, उसको मैं कर दूंगा डार्क कलर में, कोई नॉट दैट वन। ओके, अपेक्स का ये है, विच इज़ द रेक्टेंगल ऑफ अपेक्स, हाँ यहाँ पर है, राइट। सो इसको मैं कर दूंगा डार्कर थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा और बेटर लगे। और एल्स, राइट, कहाँ गया ये, ओके, लेट्स ट्राई इट लिटिल बिट मोर। डिज़ाइन और कैसा अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज ये मुझे अभी तक के अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, लेट्स डू वन थिंग बेटर। हमारे पास ग्रीन शेड है, कॉपी दिस, यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसका जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट पेस्ट इट। नाउ इट्स लुकिंग बेटर, हमारे डिज़ाइन के हिसाब से इट इज़ लुकिंग गुड। इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल डी से, एंड कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप भी करके रख दूँगा। ठीक है, कंट्रोल डी से मैंने उसको डुप्लीकेट किया, आई जस्ट मेक इट डाउन एंड अगेन कंट्रोल डी, उसको मैं और नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, इस बार वो आया नहीं उस तरीके से, वापस से हम इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। वी हैव दिस, हम इसको कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल डी, नीचे लेके आएंगे इसको अगेन, एग्जैक्टली 13 पिक्सल्स वापस से।
ओके सो अभी ये वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट फाइन, हम लोग इसको वापस से सेट कर देंगे। ठीक है, वो सेट हो गया। इसको वापस हम लेके चलते हैं अपनी जगह पर, इसकी एग्जैक्टली इन सेंटर। ओके सो आखिरकार हमारा जो है ये सेट हो गया। हाउ इज़ इट लुकिंग गाइस, टेल मी, जल्दी बताओ कैसा लग रहा है देखने में। लाइक अगर तुम लोगों को ऐसा कोई ऐप यूज़ करने दे दिया, सो विल यू यूज़ इट और नॉट? लाइक डिज़ाइन कैसा लग रहा है? फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे तो भी थोड़ा सा कलर्स में कम लग रहा है। अपेक्स लेजेंड ग्रीन शेड अगेन। ओके सो सी, यहाँ पे मैंने क्या किया बेसिकली, ये जो रेक्टेंगल है ना इसके पीछे का, ये जो रेक्टेंगल है इसको हम लोग अभी हाइड करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ना पीछे का, उसको मैंने कलर दे दिया है, जो कलर मेरे पास अवेलेबल है मेरे कलर पैलेट में। ठीक है, उस रेक्टेंगल को कलर दे दिया, और अपेक्स लेजेंड को उस रेक्टेंगल के ऊपर रख के मैंने इमेज को ऊपर रख के 30% ओपेसिटी कम मतलब उसको 30% रखी उसकी ओपेसिटी, सो दैट वो पीछे के कलर के साथ ब्लेंड हो जाए। ठीक है, अभी अपेक्स लेजेंड के लिए हम लोग एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अपेक्स लेजेंड जो है उसका जो कलर थीम है उसमें रेडिश कलर बहुत यूज़ होता है। सो इवन मैं यहाँ पर ग्रीन की जगह रेड कलर भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट? इवन मैं ग्रीन की जगह रेड कलर भी यूज़ कर सकता हूँ। एंड आई गेस नहीं, बट इट्स नॉट दैट गुड आई गेस। बट अगर मल्टीपल कलर्स आएंगे सो वो बहुत गंदा दिखेगा, एक सिंगल कलर थीम रहेगी, सो इट लुक्स बेटर, राइट? सो अभी फ़िलहाल कैसा लग रहा है ये, हाउ इज़ इट लुकिंग? फास्ट फास्ट फास्ट। राइट, अच्छा दिख रहा है ना? और कितने लोगों ने डिज़ाइन पे वर्क किया अभी साइड बाय साइड विथ मी? हाउ मैनी ऑफ यू? फास्ट टेल मी, हाउ मैनी ऑफ यू? जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, इट्स नॉट दैट कि किया तो अच्छा है, नहीं किया तो अच्छा नहीं है, किया दैट इज़ गुड। एवरीवन एवरीवन जल्दी बताओ मुझे, किस किस ने किया? ओके, जस्ट रोहित ने किया। आई ट्राइड बट आई मिस्ड फ्यू स्टेप्स सो देन आई स्टॉप्ड। विच स्टेप्स डिड यू मिस्ड? लाइक क्या मिस हो गया? डू यू अंडरस्टैंड दो स्टेप्स एंड जस्ट मिस्ड इट, और एल्स वो समझे ही नहीं व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? Devanshu, just reply. Same here, so I am just focusing. Like, what exactly? You didn't got those topics or you just missed it? क्या exactly problem है? तुम्हें समझा ही नहीं, या फिर थोड़ा सा तुम लोग कर नहीं रहे हो? Like, you are just learning right now and you will do it afterwards. What exactly it is? No, when I was working on my design, so I missed, so I stopped. Okay, okay. Basically, तुमको समझा है ना, आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि तुम लोगों को समझा है कि क्या करना है। ओके बस वही वही मेन जानना है, दैट यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली। ओके, वही बेसिकली वही बस सुनना था। नाइस, आई लाइक्ड इट। ठीक है, सो डिज़ाइनिंग का जो सेक्शन है ना ये इतना ही था। लाइक इससे ज़्यादा डिज़ाइनिंग हम कुछ ज़्यादा और कर नहीं सकते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ टू मच देन, अगर हम लोग इससे ज़्यादा डिज़ाइनिंग करेंगे तो। ठीक है, अब बाकी फिर तुम डिज़ाइंस के साथ खेल सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू विद लाइक दिस, कुछ भी खेल सकते हो डिज़ाइंस के साथ, बट जब तक कि वो डिज़ाइन अच्छी लग रही है तब तक। ओके, जैसे अभी मेरी डिज़ाइन ख़राब हो गई थी, सो यू कैन प्ले विथ द डिज़ाइंस लाइक दिस। ओके, जैसे कि अभी मुझे फॉर एग्जांपल इसके साथ कुछ करना है, रेक्टेंगल के साथ, सो मैं यहाँ पर आऊँगा, कुछ चेकआउट करूँगा व्हाट एग्जैक्टली आई हैव, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा, राइट?
आई विल एक्सप्लोर दिस कि क्या क्या है मेरे पास जो मैं इसके साथ वर्कआउट कर सकता हूँ, राइट। सो यही चीज़ करनी है तुम लोगों को भी। यू जस्ट हैव टू ग्लास सेक्शन रिपीट होना एंड टेल मी हाउ टू डिलीट एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑन माई स्क्रीन। एक्स्ट्रा इन द सेंस लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, लाइक दिस एक्स्ट्रा आइकन्स, कुछ नहीं, बस सिलेक्ट एंड प्रेस डिलीट ऑन योर कीबोर्ड। जस्ट सिलेक्ट एंड प्रेस डिलीट ऑन योर कीबोर्ड, नथिंग एल्स, ओके। एंड ग्लास सेक्शन, राइट। सो ग्लास सेक्शन में ये देखो यहाँ पे एक अदर ये लेता हूँ मैं, एक रेक्टेंगल, ठीक है। एंड इस रेक्टेंगल को ना मैं डुप्लीकेट करता हूँ उसी के ऊपर, ठीक है। ऐसे आधे आधे इस सेक्शन में डुप्लीकेट करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग एक कलर ले लेते हैं, वी हैव सम कलर, ठीक है। और ग्रेडियंट में लेते हैं हम लोग कलर, ओके। अभी मैंने एक कलर लिया ग्रेडियंट में, अभी मैं इसको लीनियर की जगह करूँगा रेडियल। क्या किया मैंने, रेडियल कर दिया इसको। और रेडियल करने के बाद मैं उसको अपने हिसाब से सेट कर दूंगा कि मुझे कितना चाहिए वो रेडियल। मैंने कलर सेट कर दिया, आई एम डन सेटिंग विथ माई कलर। अब मैं इसको क्लोज करूँगा, मैं जाऊँगा इफेक्ट में, यहाँ पे क्या है इफेक्ट्स, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं प्लस, और ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लर के ऊपर मैंने क्लिक किया, मुझे जितना ब्लरीनेस चाहिए है उतना ब्लरीनेस मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे, जितना भी चाहिए होगा, वॉट एवर ब्लरीनेस आई वॉन्ट, राइट। मैं इसको यहाँ से सेट कर दूंगा एंड सी यहाँ पे एक बेसिकली जो है ग्लास इफेक्ट आ गया है। कैन यू सी दिस ग्लास इफेक्ट, ओके। अगर हम चाहे तो इसको लीनियर में रखें तो नहीं, बट बेटर है अगर हम लोग रेडियल में रखें इसको, और इसको इस तरीके से ये करके जो सेंटर है इसको अगर हमको और हल्का रखना है, सो इवन वी कैन डू दैट लाइक दिस। इसको सेंटर को जो है हम लोग हल्का सा ओपेसिटी दे देंगे, नॉट ज़्यादा, एकदम ज़्यादा ओपेसिटी नहीं देनी है वरना वो ग्लास इफेक्ट दिखेगा नहीं प्रॉपरली, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लर किया है हमने, सो उसका हम लोग ब्लरीनेस बढ़ा सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके। सो देखो यहाँ पे नहीं, ये ब्लरीनेस तुमको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कम करूँगा सो वो कम हो जाएगा, सी दिख रहा है ग्लास जैसा एक इफेक्ट आ रहा है, इफ़ यू कैन चेक दिस आउट। मैं इसको ब्लरीनेस को अगर करता हूँ 15, ठीक है। और एक चीज़ मैं कर सकता हूँ दैट इज़ लेयर ब्लर, ठीक है। अभी इससे जो ये लेयर है देखो, अभी लेयर जो है ब्लर हो गई है, इफ़ यू कैन सी लेयर ब्लर हो गई है अभी। सो इवन यू कैन डू दिस थिंग्स, अगर तुम लोगों को कुछ और भी उसमें ट्राई आउट करना है उसके लिए तो, ठीक है, लाइक दिस यू कैन गो विद इट। ओके देखो तुम लोग ऐसी चीज़ें बना सकते हो लाइक दिस। मैं इसको फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड इसको मैं कलर अभी यहाँ से दे दूँगा रेड की जगह पे कुछ पर्पल, ठीक है। एंड देन अगेन मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ऐसा ये कर दूँगा, ठीक है। और इसका जो ब्लरीनेस है वो घटा दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, और एल्स बढ़ा दूँगा, वट एवर आई वुड जस्ट लाइक टू। और मैं लेयर ब्लर यहाँ से हटा दूँगा, मुझे लेयर ब्लर नहीं चाहिए है, और इस लेयर ब्लर रख भी देंगे हम लोग। देन अगर ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, सो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा ना, ऐसा कुछ अगर तुम लोग इफ़ेक्ट चाहते हो, सो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा, उसके ऊपर रख दूँगा, एक रेक्टेंगल रखा मैंने, ठीक है। उस रेक्टेंगल को मैं ओपेसिटी कम कर दूँगा, लाइक नियर बाय 30 ज़्यादा हो जाएगा 25, ठीक है। उसको ब्लर किया, देन उसको इफ़ेक्ट दे देंगे अगेन बैकग्राउंड ब्लर का, जिससे वो पीछे का बैकग्राउंड और ब्लर कर दे, ठीक है। सो अभी मेरे पास क्या है ना, पीछे में एक बैकग्राउंड है जो ग्रेडियंट है, इसको हम लोग नीचे लाते हैं, इसको भी नीचे लाते हैं लाइक दिस,
ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ सो दैट इट शुड लुक अ लिटिल डिफरेंट। तो मैं ऐसा कुछ भी एक ये बना सकते हो। तो इसको हम लोग बेसिकली मॉर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि तुम लोगों को कुछ अलग डिज़ाइंस के कलर्स वगैरह चाहिए है, ग्लास इफेक्ट चाहिए, सो यू कैन डू इट। ठीक है, सो अभी यहाँ तक सभी को समझा कलर्स किस तरीके से यूज़ करने हैं, लाइट कलर कहाँ यूज़ करने हैं, डार्क कलर्स कहाँ यूज़ करने हैं, राइट। अभी अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास और भी वहाँ पे कलर पैलेट्स थी, राइट, अगर मैं उनमें से और भी कोई कलर पैलेट्स को उठा के लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि वहाँ पे एक कलर पैलेट थी जिस पे ब्लू कलर था, ठीक है, ब्लू कलर था, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू कलर देता हूँ इसको। उस कलर पैलेट के हिसाब से अगर हम चेंज करें, आई हैव मेड इट ब्लू, इसके आइकन पर भी मैं ब्लू कर दूंगा देन। ठीक है, थोड़ा सा वो दिखने में अच्छा लगेगा। एंड देन इसको मैं कर दूंगा लाइटर, और इट्स नॉट लाइटर, वैसे ही रखेंगे। उसके बैकग्राउंड को बस चेंज करेंगे, ग्रीन की जगह पे हम लोग उसके बैकग्राउंड को कर देंगे लाइक दिस वाइट। ठीक है, मैं बस कलर पैलेट चेंज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जस्ट चेक मी आउट कि मैं कैसे कलर पैलेट चेंज कर रहा हूँ, जो कलर्स है उनको किस तरीके से अलग अलग डाल रहा हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से कलर पैलेट्स को चेंज करते हो, राइट। यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ कलर, आई एम टेकिंग दिस। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कलर, ठीक है, मैंने बस कलर चेंज कर दिया, हल्का सा लाइटनेस ला देता हूँ इसमें। ओके, आई विल जस्ट गो हियर अगेन। मैं इसको 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 डिलीट करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग वापस से इसी का कलर दे देंगे। सो इट्स टोटली वेरी इजी कलर पैलेट को चेंज करना, बहुत ही ईजी चीज़ है। विद इन सेकेंड्स मैंने कलर पैलेट को जो है पूरा पलटा दिया, विद इन सेकेंड्स। यहाँ पे भी आया मैं कलर चेंज, इसके अंदर भी कलर चेंज। ठीक है, सिमिलरली मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसका जो रेडियल है कलर उसको भी चेंज कर देंगे, इसमें भी चेंज। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क कलर में था, इसको डार्क कलर में लेके आता है। सी, विद इन सेकेंड्स पूरा कलर पैलेट चेंज हो गया। इवन व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पे ये वाइट कलर मुझे ज़्यादा एकदम सूट नहीं कर रहा है, इसकी जगह पे मैं ये डाल देता हूँ। इट इज़ लुकिंग मोर बेटर नाउ, राइट। अब बताओ, लास्ट वाली डिज़ाइन भी हमने देखी कैसी थी। एक काम करते हैं, इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है अलग से रखते हैं इधर, एंड इसके ऊपर हम लोग जो है, अरे यार वो अंडू होगा तो पूरी तरीके से अंडू हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, एंड इसको हम लोग टोटली वापस से जैसा था वैसा बना देते हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट। मैंने कॉपी किया था उस पर्टिकुलर सारी चीज़ों को कॉपी किया था मैंने, जितनी भी थी। ठीक है, मैं अभी वापस से इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अलग से लेकर आता हूँ एंड पेस्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने पेस्ट किया वो अपने आप ही आ गया वहाँ पे। अभी जब इनको आजू बाजू रखेंगे हम लोग, सो दोनों में से मुझे जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। एंड आई गेस मुझे जो है, चलो आप ही बता दो, मुझे तो मैंने सोच लिया मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, बट स्टिल यू टेल मी, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, वन और टू। सेकंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इवन आई एम लाइकिंग द सेकंड वन नाउ। बेसिकली क्या है ना, कलर पैलेट्स का खेल है पूरा। हम लोग जैसी कलर पैलेट सिलेक्ट करेंगे वैसा वो जो है हमारा यूआई अच्छा बनते जाएगा। मैं माइट भी इसी को डुप्लीकेट करके और 2-3 कलर पैलेट्स इसके ऊपर ट्राई करूं, और जो कलर पैलेट मुझे ज़्यादा बेस्ट लगे मैं उसको यूज़ कर लूँ, राइट। चलो अभी कर ही लेते हैं हम लोग एक ट्राई। चलो, जिसमें थोड़े कम कलर्स हो हम लोग वही कलर पैलेट ट्राई करेंगे। ठीक है, जिसमें कम कलर्स हो। अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ,
ये मेरा वेक्टर है। वापस से हम लोग कलर पैलेट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये कलर। ठीक है, एंड आइकन के लिए वापस से कंट्रोल डी, अरे नॉट दिस, डबल क्लिक एंड पेस्ट। ठीक है, मैं इसके लिए यूज़ करूँगा दिस वन। बस मैं कलर्स को चेंज कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, ओनली चेंजिंग द कलर्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अभी, इस रेडियल में हम लोग डाल देते हैं ये कलर। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर भी ये कलर, इस रेडियल में भी ये कलर, एंड अगेन नॉट दिस वन, यहाँ पे भी ये कलर आ गया। और यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी ये ब्लू कलर कहाँ पे है इसका, डिलीट, अभी भी है कुछ, ओके गुड। ठीक है, अगेन यहाँ पे आते हैं, इसके रेक्टेंगल पे जाते हैं एंड चेंज कलर, सिमिलरली लाइक दिस, रेक्टेंगल चेंज कलर। एंड नाउ ये बेसिकली यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है ये वाला जो कलर है ना वो ज़्यादा बेटर लगेगा, rather than that ये कलर ज़्यादा बेटर लगेगा यहाँ पर। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज़, हम लोग वापस इधर जाएंगे। ये इस कलर से अच्छा, इट विल लुक इन दिस कलर, जो हल्का सा डार्क हो, राइट, यस, एंड सिमिलरली इन दिस, बिकॉज ऑरेंज कलर में ऑलरेडी जो है ना इसका टाइटल्स है, राइट। सो अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये सेम ही लग रहा है, बस यहाँ पे टेक्स्ट कलर अभी चेंज हो गया है, राइट। बस टेक्स्ट कलर जो है वो डिफरेंट आ गया है, अभी बाकी सब सेम है ऑलमोस्ट। सो इस तरीके से हम लोग ट्राई एंड एरर कर सकते हैं। जितना हो सके आप पैलेट्स ट्राई करो, जो पैलेट बेस्ट लगे यू जस्ट कंफर्म दैट पैलेट, एंड आगे के डिज़ाइंस जो है ना उसी पैलेट के साथ बनाओ। ओके, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से जो है ना ये मुझे बेटर लग रहा है क्योंकि मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल हुआ है इसमें। ठीक है, मल्टीपल कलर्स का, जो ना एकदम ज़्यादा ब्राइट है ना ही एकदम ज़्यादा डल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये कलर थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर बहुत डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। व्हाट डू यू थिंक, इन तीनों में से क्या लगता है तुम लोगों को, तीनों में से विच इज़ बेटर वन? Which is the better one? What do you think? What do you guys think? Everyone, जल्दी से, फास्ट, वी आर एट एंड ऑफ द सेशन, सो मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी रिप्लाईज चाहिए सबके, फास्ट फास्ट फास्ट। आई हैव जस्ट गॉट अ सिंगल रिप्लाई, एवरीवन फास्ट। सब लोग डिज़ाइनिंग करने लग गए क्या? ओके, जिसको सेकंड पसंद आ रहा है सेकंड, जिसको थर्ड पसंद आ रहा है थर्ड, जिसको फर्स्ट पसंद आ रहा है फर्स्ट, एनी। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम वोट्स जो है वो ब्लू, सेकंड सेकंड 2, थर्ड के लिए 2 है, 3 है, सेकंड 1 2 3 4 5, राइट। सो सेकंड वाला डिज़ाइन ज़्यादातर लोगों को पसंद आया है। ओके, सो यही चीज़ है ना, बेसिकली तुम लोगों के जो विजन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, सब लोगों के अलग अलग विजन है, सबकी अलग अलग क्रिएटिविटी है, राइट, सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग है। सो यहाँ पर
किसी को फर्स्ट पसंद आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऑफ कोर्स बुरा ये भी नहीं दिख रहा है, इट इज़ नॉट लुकिंग बैड, इट इज़ गुड। बट कह सकते हैं कि इससे माइट भी थोड़ा बेटर ये लग रहा होगा किसी को, इससे माइट भी थोड़ा बेटर किसी को ये लग रहा होगा, इससे बेटर ये लग रहा होगा, या फिर इससे बेटर ये लग रहा होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। ओके, सो सभी को आज के सेशन का ये समझ में आया कि किस तरीके से हमने कलरिंग की है हमारे स्ट्रक्चर में, किस तरीके से स्ट्रक्चर को हमने कलर किया है सभी को। इफ़ येस +1, एवरीवन स्पैम +1, स्पैम कर दो बिल्कुल फास्ट, राइट। सो अभी तुम्हारा आज का टास्क यही है कि तुम लोगों ने जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उन स्ट्रक्चर्स को कलर करना है, डिज़ाइन करना है अच्छे से, यूज़ गुड फॉन्ट। सी मैंने अभी यहाँ पे फॉन्ट कोई चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे जो फॉन्ट यहाँ पे है ऑलरेडी वही अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी फॉन्ट है मुझे वही अच्छा लग रहा है। सो मैंने फॉन्ट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं इससे बेटर मुझे वो फॉन्ट लग रहा है, कोई अलग फॉन्ट लग रहा है, यू कैन यूज़ इट, ठीक है। सो तुम लोगों को बेसिकली डिज़ाइनिंग करनी है, अच्छे से कलर वगैरह चूज़ करने हैं, कलर पैलेट्स अच्छे से यूज़ करनी है, अपना प्राइमरी कलर चूज़ करना है। जैसे मेरा प्राइमरी कलर जो है वो बैकग्राउंड में डार्क कलर है, ओके। बट अगर फिर भी जब हम लोग इस सेक्शन में आते हैं जो या फिर इनमें आते हैं, सो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी कलर जो है वो ग्रीन है एंड यहाँ पे ब्लू है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। प्राइमरी कलर क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ है, प्राइमरीली जो यूज़ होता है, ठीक है। दैन डार्क मोड इज़ डिफरेंट, लाइट मोड इज़ डिफरेंट, वो अलग चीज़ है। सो तुम लोगों को इस तरीके से डिज़ाइनिंग करना है, कलर को कलरिंग करना है अपने सब चीज़ों को, जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया तुमने। एंड कल सेशन में आने से पहले एटलीस्ट 3 स्क्रीन्स तुमको बनानी है, डिफरेंट स्क्रीन्स, क्योंकि कल का जो टॉपिक है दैट इज़ वायर फ्रेमिंग। लाइक जैसे कि इस बटन पे क्लिक करके, जो ये जो बटन है, ठीक है, आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कैसे मैं सेकेंड पेज के ऊपर जाऊँगा, राइट। वो सब चीज़ें हम लोग कल देखेंगे कि कैसे इस आइकन के ऊपर क्लिक करके मैं प्रोफाइल पेज के ऊपर जाऊंगा, कैसे सर्च को क्लिक करके मैं सर्च पेज पे जाऊंगा, कैसे मैं इस ट्रेंडिंग गेम के ऊपर क्लिक करके उसके जो मैचेस चल रहे हो वो ओपन करूँ, कैसे वो ओपन करेंगे हम लोग, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली तुम लोगों के पास एटलीस्ट मिनिमम 3 स्क्रीन्स तो होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी है, 4-5 आप जो बना सकते हो, यू कैन मेक इट, ठीक है। ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, आधे घंटे का काम है एक स्क्रीन को क्रिएट करना। लाइक हमने यहाँ पे 3 स्क्रीन्स क्रिएट कर ली, राइट। सो एक स्क्रीन को क्रिएट करना एक आधे घंटे का काम है, यू कैन जस्ट डू इट विद इन हाफ एन आवर, ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास, जस्ट कलरिंग करना है उसे, ओके। सो यू कैन डू द कलरिंग एंड एवरीथिंग। एटलीस्ट 3 स्क्रीन्स होने चाहिए सो दैट हम कल वायर फ्रेमिंग अच्छे से कर सके, ओके। एंड देन कल वायर फ्रेमिंग होने के बाद परसों जो है हम लोग करने वाले हैं प्रोटोटाइपिंग, ओके। सो बेसिकली प्रोटोटाइपिंग क्या होता है अभी मैं एक बार दिखाता हूँ तुम लोगों को। कहाँ गई, ये है मेरी डिज़ाइन, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास बहुत से डिज़ाइन है, मैं उसमें से एक डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट दिस, आई गेस दिस वन, ठीक है। मैं इसको ना प्रीव्यू करता हूँ। सो प्रीव्यू करता हूँ मतलब क्या है बेसिकली कि वो डिज़ाइन कैसे वर्क करेगी मोबाइल्स में, वो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई है वो कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। अभी प्रोटोटाइपिंग क्या होता है ना, जब मैं इसके साथ इंटरैक्ट करूँगा तो वो कैसे इंटरैक्ट होने वाला है वो बेसिकली हम लोग प्रोटोटाइपिंग में सीखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ, सो ये स्क्रॉल कैसे हो रहा है, जब मैं इस शूज़ के ऊपर क्लिक करूँगा ना, सो देखो एक एनिमेशन आ रहा है। सो वो एनिमेशन कैसे आएगा, ये जो नया पेज है वो कैसे ओपन होगा, ये नया पेज कैसे ओपन होगा ये तो हम कल ही देख लेंगे इन वायर फ्रेमिंग। बट ये जो एनिमेशंस है, ये एनिमेशंस कैसे आएंगे, यहाँ पे जो बटन पे क्लिक करने के बाद ये एनिमेशंस आ रहे हैं वो कैसे आएंगे। कार्ट में हम लोग जा रहे हैं, पेज चेंज हो गया, फिर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, सी अगेन एनिमेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं, जो शूज़ है वो अपने आप जूम हो रहा है, प्राइस नीचे लिख के आ रही है, राइट। सो ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे ना, वो हम लोग प्रोटोटाइपिंग में देखेंगे, ये एनिमेशंस एंड ऑल। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या होता है
हम लोग कोई भी एक चीज़ जब बनाते हैं उसका एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं. इफ़ यू नो व्हाट इज़ प्रोटोटाइप, एवरीवन नोज व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोटोटाइप मीन्स. प्रोटोटाइप क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है प्रोटोटाइप? एवरीवन एवरीवन. मिनिएचर, ओके, मिनिएचर कह सकते हैं. सी प्रोटोटाइप इज बेसिकली ना क्या होता है ना, अगर हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बात करें जो डेवलपर्स डेवलप करते हैं, सो प्रोटोटाइप वो होता है कि एक सबसे पहला टेस्ट जिसके ऊपर टेस्ट होने वाला है, टेस्टिंग जिसके ऊपर होने वाली है, सबसे पहली टेस्टिंग. सो जिसके ऊपर टेस्टिंग होती है ना वो होता है प्रोटोटाइप. और जो टेस्टिंग होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ द फाइनल, मतलब जो फाइनल रिजल्ट निकलता है दैट इज़ द प्रोडक्ट. ठीक है. सो अभी हम लोग प्रोटोटाइपिंग करेंगे इस चीज़ का, इस डिज़ाइन का. कल मतलब इन अपकमिंग सेशंस हम लोग प्रोटोटाइपिंग जब सीखने वाले हैं तब सीखेंगे कि किस तरीके से इसको स्क्रोलिंग इफेक्ट वगैरह हम दे सके, किस तरीके से ये एनिमेशन दे सके. राइट. सो ये सब प्रोटोटाइपिंग है कि यार मेरा जब ऐप, इस डिज़ाइन को जब ऐप में फ्रंट एंड में कन्वर्ट जब करेगा फ्रंट एंड डेवलपर, जब कोड करेगा, सो ये इस तरीके से दिखेगा. राइट. सो दैट इज़ प्रोटोटाइपिंग. ये जो एनिमेशन है, स्पेशली एनिमेशंस दिखेगा, यूआई डिज़ाइन वगैरह ठीक है, बट प्रोटोटाइपिंग पे से ये स्पेशली एनिमेशंस जो है दैट इज़ प्रोटोटाइपिंग. ओके. सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं. ठीक है. पेजेस को चेंज करना, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, दूसरे पेज से तीसरे पेज पर जाना. एनिमेशंस, पेज जब चेंज हो रहा है सो उस पेज को एनिमेट करना, सो वो हम लोग एनिमेशंस प्रोटोटाइपिंग में सीखेंगे. चेंजिंग पेजेस हम लोग वायर फ्रेमिंग उसको बोलते हैं, दैट इज़ हम लोग कल देखेंगे. ओके. सो बेसिकली तुम लोगों ने अभी 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनिंग. ठीक है. सबसे पहली स्टेप थी दैट इज़ रिसर्च. सेकेंड स्टेप थी दैट इज़ स्केचिंग एंड स्ट्रक्चरिंग. थर्ड स्टेप डिज़ाइनिंग. ये तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. कल हम लोग करेंगे वायर फ्रेमिंग, परसों हम लोग करेंगे प्रोटोटाइपिंग. ठीक है. ये 5 चीज़ें होने के बाद आई एम प्रिटी श्योर कि जितने भी लोगों ने ये सेशन अच्छे से किया है उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा या सर हम लोगों को यूआई बनाना नहीं आता, किसी भी एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनाना नहीं आता. ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे फिर वो वेब का हो, एंड्रॉयड का हो, आईओएस का हो, किसी का भी हो. बिकॉज सी, मैं एंड्रॉयड के लिए बना रहा हूँ, सो मैं सिमिलर चीज़ वेब के लिए भी बना सकता हूँ. राइट. फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज़ को ना यहाँ पे जो है नीचे लेकर आता हूँ. ठीक है. इसका जो है विड्थ बस बढ़ा देता हूँ. मैं इसको यहाँ पे लेकर आया, इसकी मैंने बस विड्थ बढ़ा दी. तो अब मैं क्या करूँगा, विड्थ मैंने बढ़ाई है. राइट. मैं बस यहाँ पे विड्थ बढ़ा रहा हूँ. सो ये जो आइकन है यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है. सो इसको हम लोग ठीक करेंगे पहले. ठीक है. इसको हमने बिल्कुल ठीक कर दिया. ओके. सो अभी यहाँ पे आ गया ये. अभी मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को यहाँ से ये करके जाऊँगा. यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ है, इसको मैं बिल्कुल लेकर जाऊँगा इधर. ठीक है. देखो ये 3 लाइंस आ गई, वो बराबर मुझे बता दिया उसने. अभी मैं इन दोनों चीज़ों को पहले सेंटर में करूँगा ताकि मुझे बाकी के जो ये साइड के 2 चीज़ें हैं उनका बराबर अंदाज़ा आ जाए कि वो एग्जैक्टली कितने दूरी पर है. ठीक है. इनको मैं लेके आऊँगा थोड़ा सा इधर, एंड अगेन इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड नाउ आई विल चेक कि बाबा कितनी दूरी है. देखो एग्जैक्ट हो गया है वो. इसको मैं जो है डुप्लीकेट कर सकता हूँ और ठीक है. मैंने इस तरीके से डुप्लीकेट किया. एक और डुप्लीकेटेड लेयर लेके आ गया मैं. ठीक है. सो इस तरीके से डुप्लीकेट कर दिया. सिमिलरली ये जो इमेज है इसको भी डुप्लीकेट कर देते हैं यहाँ पर. राइट. और ये जो चीज़ है यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं. ठीक है. वो आ गया नीचे.
देन ये भी आ गया नीचे। देन इन लोगों को हम लोग यहाँ से वापस डुप्लीकेट करके इधर लेकर चलते हैं, राइट। बट अभी ये जो है थोड़ा सा कट रहा है, सो इसको हम लोग जो है साइज़ जो है प्रॉपरली इसकी थोड़ी सी कम कर देंगे, राइट। जैसे कि इसको मैं इधर लेके आया हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सो इसकी क्या है 280 एग्जैक्ट कर देते हैं हम लोग, इसको भी 280 एग्जैक्ट। सिमिलरली मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों को मैं बोलूँगा 280 हो जाओ। सिमिलरली इनको सिलेक्ट करूँगा, इनको बोलूँगा मैं 280 हो जाओ, ठीक है। एंड देन एज़ पर प्रॉपर डिस्टेंस उनको मैं सेट कर लूँगा, ठीक है। ये पहले तो सेंटर में लेके आ जाऊँगा, और आई गेस 280 से और बेटर कर सकते हैं हम लोग, बट ठीक है अभी फ़िलहाल। एंड ये जो ऐप बार है ना, इसको मैं इस तरीके से करने से अच्छा ना यहाँ से हटा दूँगा, इसको भी यहाँ से फ़िलहाल हटाते हैं और कहीं अलग जगह पे एडजस्ट कर लूँगा। राइट, अभी पहले इसको मैं इनको चीज़ों को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। ठीक है, सी हमने हमारे डिज़ाइन को कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर दिया। सो अभी अगर मुझे मेन्यू ऐड करना है मेरे, तो मैं इस चीज़ को ना इसी के साइड में ला लूँगा, और जो मेरा मेन्यू था उसके लिए मैं क्या करूँगा, बस आइकन। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ना कुछ प्लगइन्स है, मैं यहाँ पे जाऊँगा प्लगइन्स में, और मेरे पास ना रिमिक्स आइकन का प्लगइन है। अगर किसी को डाउनलोड करना है तो वो फाइंड मोर में जाकर, फाइंड मोर प्लगइन्स में जाकर यहाँ पे जो भी आइकन का तुम्हें चाहिए है यू कैन जस्ट टेक इट। मैं रिमिक्स आइकन यूज़ करता हूँ, सो आई एम टेकिंग रिमिक्स आइकन। एंड जब हम ये ओपन करेंगे ना रिमिक्स आइकन का, सो सी यहाँ पे मेरे पास ये आइकन्स का आ गया। यहाँ पे सभी को दिख रहा है ये आइकन्स का सेक्शन जो है वो, इज़ इट विजिबल, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल हैम बर्गर। देखो हैम बर्गर मेन्यू जैसे मैं डाल रहा हूँ वो अपने आप आ गया। सो मैं इसमें से एक अच्छा वाला सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि ये है, ये मेरे पास आ गया इधर। इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर में लेके आऊँगा, ठीक है। अच्छे से हम लोग इसको ये करेंगे, प्रॉपरली सेट, ठीक है। इसको बंद करते हैं अभी। एंड देन इसका कलर हम लोग इस कलर जैसा ही रखेंगे, सेम। राइट, और जो इसके पीछे का सर्कल है वही मैं उसके पीछे भी दे दूँगा, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर मुझे एग्जैक्ट इसी लाइन में सर्कल को लेके जाना है, सो मैं क्या करूँगा, मैं दबाऊँगा शिफ्ट एंड जूम कर लेते, थोड़ा सा माइन्यूट वर्क है, जूम करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं दबाया शिफ्ट, और मैं इस जो सर्कल है पहले इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, ये क्योंकि, ठीक है। शिफ्ट दबाया मैंने, इस चीज़ को मुझे चाहिए है, मैं उस चीज़ को नहीं चाहता हूँ। इसको वापस से मैं उसकी जगह पे रख देता हूँ, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करके एग्जैक्टली इसके अपोजिट में लेके आ जाऊँगा, ठीक है, लाइक दिस। अभी वो एग्जैक्ट अपोजिट में है, और इस आइकन को अभी यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा बिल्कुल इसके यहाँ पे, ठीक है। ये जो आइकन है मेरा, इसको एग्जैक्टली मैं इसके यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा, ओके। बन गया मेरा, इनको बराबर यहाँ पे सेट, और ये मेरा बन गया टैबलेट के लिए या फिर डेस्कटॉप के लिए कह सकते हैं, राइट। सो सभी को समझा अभी किस तरीके से हम लोग किसी भी साइज़ ऑफ डिज़ाइन के लिए, किसी भी साइज़ के डिज़ाइन के लिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक ही डिज़ाइन को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने जस्ट कर दिया, राइट। मैंने कुछ नहीं, बस कुछ बेसिक सेटिंग्स भी नहीं, बस एक जगह से दूसरी जगह पे कंपोनेंट को शिफ्ट किया, जहाँ पे जो अच्छा लग रहा है वहाँ पे रख दिया, जो नहीं होना चाहिए उसको हटा दिया, जो होना चाहिए उसको ऐड कर दिया।
समझा सभी को? ये सभी को, एवरीवन? And in response from everyone, each and everyone who is present in this meeting. Right? So आई गेस तुम लोगों को अभी अच्छे से समझ गए कि किस तरीके से हम लोग डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं. इट इज़ रियली ईजी कि हम लोग डिज़ाइनिंग को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. राइट? बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी जद्दोजहद का काम नहीं है. राइट? एंड इसको भी मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया. हो गया मेरा, ये भी सेट हो गया. एवरीथिंग इज़ डन फेयर. इसको हल्का सा सेंटर. ओके ठीक है, डन. चाहो तो मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करके भी बढ़ा सकता हूँ लाइक दिस. सबका अपना अपना बराबर एक्यूरेटली सेट हो गया. डन. अब और क्या चाहिए हमें? और क्या ही चाहिए, इज़न्ट इट? सो सभी को आज का टास्क समझ गया? टास्क क्या है एवरीवन? व्हाट इज़ टुडेज टास्क? सभी को समझा है? कल कंप्लीट करना है वो टास्क. और जैसे मैंने बताया मिनिमम 3 स्क्रीन्स होने चाहिए कल, सो दैट वायर फ्रेमिंग हम लोग अच्छे से सीख सके. ओके. एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप ऑन 5th डे आई विल अनाउंस अ स्मॉल सरप्राइज जो है सभी के लिए, जो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं सेशंस, फॉर स्पेशली फॉर देम जो रेगुलरली अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं. ओके. उनके लिए बहुत स्पेशली एक छोटा सा सरप्राइज है दैट विल आई विल अनाउंस ऑन द 5th डे ऑफ दिस वर्कशॉप. ओके. सो थैंक यू एवरीवन. सभी को थैंक यू जिन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे सीखने के लिए आए, कुछ नया, कुछ अच्छा. ओके. सो सभी को सीखने मिला कुछ अच्छा. राइट? बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस सीखना है हमें. राइट? सो लेट्स कंक्लूड द सेशन. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.